تیسرا پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے، اور آج یہ تیسرا پارہ مکمل ہو جائے گا۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اولئک، یہاں پر دیکھیے واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس وجہ سے واو کو نہیں پڑھا جائے گا یہاں پر۔ اولئک، لام کے اوپر مد ہے، مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، تو یہاں پر مد متصل ہوگا۔ مد متصل کو 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ جزاؤہم، یہاں پر جیم اور یہ زا دونوں کی آواز میں فرق ہے، یہ جا ہے اور یہ زا ہے۔ جزاؤہم، یہاں پر بھی حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، یہاں پر بھی مد متصل ہوگا۔ مد متصل کو 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ جزاؤہم، یہاں پر میم ساکن کے بعد حمزہ ہے، اس وجہ سے میم میں اظہار شفوی ہوگا۔ میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے جیسے ہم تم کی میم کو پڑھتے ہیں۔ ان، نون مشدد ہے، نون میں غنہ کریں گے 1 الف کی مقدار، جیسے ان، اس طرح۔ علیہم، یہاں پر بھی میم میں اظہار شفوی ہوگا۔ لعنت اللہ، اللہ کلام کو پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ کلام سے پہلے زبر ہے۔ والملائکہ، یہاں پر بھی حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، مد متصل ہوگا۔ والناس، نون مشدد ہے، نون میں غنہ ہوگا۔ یہاں پر جیم میں قلقلہ ہوگا، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کے اوپر جیم ہے۔ اور یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر یہ سکون سے بدل جائے گا، اور تو یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا کیونکہ حرف مد کے بعد سکون عارضی اور وقفی ہے آ رہا ہے، اس وجہ سے مد عارض وقفی ہوگا۔ اب مد عارض وقفی، اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے علامت ہے لام الف، آیت ہے اس کے اوپر ہے لام الف، تو جب عبارت کے درمیان میں لام الف ہوتے ہیں وہاں نہ ٹھہرنا چاہیے، اور جب آیت میں ہو تو وہاں پر ٹھہر سکتے ہیں، کوئی مطلب نہیں بگڑتا، ٹھیک ہے۔ تو اجمعین یہاں پر وقف کریں گے۔ دیکھیے اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ خا کو پر پڑھیں گے کیونکہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو خا کو پر پڑھیں گے۔ فیہا، یہاں پر جیم علامت ہے، یہاں پر ٹھہر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ٹھہر سکتے ہیں، تو یہاں پر ہم وقف نہیں کریں گے کیونکہ یہ آیت چھوٹی آیت ہے، تو ہم یہاں پر آیت میں وقف کریں گے۔ لا یخفف، یہاں پر بھی دیکھیے خا ہے، خا کو پر پڑھیں گے۔ عنہم، یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے، حروف حلقے میں سے، تو نون میں اظہار ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ عذاب، ذال کو باریک پڑھیں گے۔ ولا ہم، یہاں پر میم ساکن کے بعد یا ہے، میم میں اظہار شفوی ہوگا۔ یوں ضرور، یہاں پر بھی جب وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا۔ الا الذین، دیکھیے ذال کو باریک پڑھیں گے۔ لذین، یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تابو، یہاں پر الف مدہ ہے اور یہاں پر واو مدہ ہے، دونوں کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم، یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد با ہے، تو جب نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ من بعد ذلك، ذال کو باریک پڑھیں گے، وَأَصْلَحُوا، ایسے
यहाँ पर अलामत है क़िफ़, क़िफ़ का मतलब है ठहर जाओ, तो यहाँ पर ठहर जाएंगे। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बअदि ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। नून मुशद्दद, नून में गुन्ना होगा। अल्लाह कलाम को पुर पढ़ेंगे, अल्लाह कलाम से पहले ज़बर है। गैन को पुर पढ़ेंगे, गैन हुरूफ मुस्तालिया में से है। और रॉ को भी पुर पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर दो पेश की तनवीन है, और यहाँ पर रॉ को रा से मिलाकर पढ़ेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से यहाँ पर क्या है, रॉ है। तो रॉ को रा से मिलाकर बग़ैर गुन्ना के पढ़ेंगे, जिसको इदगाम बिला गुन्ना कहते हैं। और दोनों रॉ को पुर पढ़ेंगे। हीम यहाँ पर वक्फ़ करेंगे तो मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगा। फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बअद ईमानिहिम सुम्मा ज़दादू कुफ़्रन लन तुक़बल तौबतुहुम। इन्ना नून मुशद्दद, नून में गुन्ना होगा। लज़ीना दाल को बारीक पढ़ेंगे, कफ़रू काफ को बारीक पढ़ेंगे और रू रॉ को पुर पढ़ेंगे। बाद ईमानिहिम, ईमानिहिम या मद्दा यहाँ पर एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मीम में यहाँ पर इज़हार शफ़वी होगा। तुम रा को बारीक पढ़ेंगे, तुम ऐसे। मीम मुशद्दद, मीम में गुन्ना होगा। तुम मज़ दादू, दादू यहाँ पर देखिए अलिफ मद्दा, यहाँ पर वाव मद्दा। दादू कुफ़्रन, रॉ को पुर पढ़ेंगे। और यहाँ पर भी तनवीन के बाद लाम है हुरूफ यरमलून में से, तो तनवीन को लाम से मिलाकर बग़ैर गुन्ना के पढ़ेंगे। इसको इदगाम ताम कहते हैं। ला इदगाम, इसको इदगाम ताम भी कहते हैं, इदगाम बिला गुन्ना भी कहते हैं। ला यहाँ पर नून साकिन के बाद ता है हुरूफ इख्फा में से, नून में इख्फा करेंगे तो कॉफ को पुर पढ़ेंगे। कॉफ हुरूफ मुस्तालिया में से है, और कलकला भी करेंगे क्योंकि कॉफ हुरूफ कलकला में से भी है। तौबतुहुम यहाँ पर जीम अलामत है, ठहर जाएंगे। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बअद ईमानिहिम सुम्मा ज़दादू कुफ़्रन लन तुक़बल तौबतुहुम व उलाइका हुमुज़्ज़ाल्लून। व उलाइका यहाँ पर देखिए वाव में कोई हरकत नहीं है, वाव को नहीं पढ़ेंगे। और यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल है। हुमुज़्ज़ाल्लून, ज़ौद को पुर पढ़ेंगे। और यहाँ पर हर्फ मद के बाद वाले कलीमा में मुशद्दद है, तशदीद है, तो इसको मद्दे लाजिम कहते हैं। मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल कहते हैं। मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल, इसको भी 3-4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। और वक्फ़ करेंगे तो नून में यहाँ पर मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगा। व उलाइका हुमुज़्ज़ाल्लून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबन वलव इफ़्तदा बिह। इन्ना नून मुशद्दद, नून में गुन्ना करेंगे। लज़ीना दाल को बारीक पढ़ेंगे। कफ़रू रॉ को पुर पढ़ेंगे। वमातू यहाँ पर अलिफ मद्दा और वाव मद्दा है, दोनों को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वहुम मीम साकिन के बाद यहाँ पर काफ है, मीम में इज़हार शफ़वी होगा। कुफ़्फ़ारुन, रॉ को पुर पढ़ेंगे। रॉ के ऊपर दो पेश की तनवीन है, और यहाँ पर तनवीन में इख्फ़ा करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ इख्फ़ा में से फ़ा है। फ़लई यहाँ पर नून साकिन के बाद हुरूफ यूमिन में से या है, तो नून को या से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। इसको इदगाम नाक़िस कहते हैं। क़ाफ़ में कलकला करेंगे, क़ाफ़ हुरूफ कलकला में से है, और क़ाफ़ को पुर पढ़ेंगे क्योंकि क़ाफ़ हुरूफ मुस्तालिया में से भी है। मिन अहदिहिम यहाँ पर नून साकिन के बाद हमज़ा है, हुरूफ हल्के में से, नून में इजहार होगा। नून को ज़ाहिर करके जल्द पढ़ेंगे। अहदिम, यहाँ पर देखिए मीम साकिन के बाद मीम है, तो जब मीम साकिन के बाद मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ा जाता है। इसको इदगाम शफ़वी कहते हैं। मिल्उल अर्ज़ि, यहाँ पर रॉ को पुर पढ़ेंगे, रॉ साकिना से पहले ज़बर है। अर्ज़ि, ज़ौद को पुर पढ़ेंगे, ज़ौद हुरूफ मुस्तालिया में से है। ज़हबन, यहाँ पर ज़ाल को बारीक पढ़ेंगे, और ज़हबन यहाँ पर तनवीन के बाद हुरूफ यूमिन में से वाव है, तो तनवीन को वाव से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। इसको इदगाम नाक़िस कहते हैं। वलव इफ़्तदा बिह,
यहाँ पर या को नहीं पढ़ा जाएगा, या में कोई हरकत नहीं है। बी यहाँ पर देखिए तो वक्फ मुतलक की अलामत है, यहाँ पर जब वक्फ करेंगे तो हा की खड़ी ज़ेर वो जज्म से बदल जाएगी, तो बी पढ़ेंगे बी। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबन वलव इफ्तदा बिहि उलाइक लहुम अज़ाबुन अलीम वमा लहुम मिन नासिरीन। उलाइका यहाँ पर वाव को नहीं पढ़ा जाएगा, लाम यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल है, लहुम मीम में इजहार शफवी होगा, दाल को बारीक अदा करेंगे, बुन यहाँ पर इजहार होगा, इजहार हकीकी, और अलीमू यहाँ पर तनवीन के बाद वाव है हुरूफ यूमिन में से, तो इदगाम नाक़िस होगा यहाँ पर। वमा लहुम और यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम है, तो यहाँ पर इदगाम शफवी होगा। मिन नासिरीन यहाँ पर नून साकिन, यहाँ पर देखिए नून साकिन के बाद नून है हुरूफ यूमिन में से, तो नून को नून से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, इसको इदगाम नाक़िस कहते हैं। नासिरीन सौद को पूर्व पढ़ेंगे, सौद हुरूफ मुस्तालिया में से है, और यहाँ पर देखिए वक्फ करेंगे तो मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगा। उलाइक लहुम अज़ाबुन अलीम वमा लहुम मिन नासिरीन। तो यहाँ पर तीसरा पारा मुकम्मल हो गया है, और इसके बाद इंशाअल्लाह चौथा पारा भी बहुत जल्द शुरू कर देंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।